اور ہمارے ساتھ محمد عارف اظہری جڑ گئے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. آپ دونوں کا بہت استقبال ہے. عارف صاحب بھی ہیں. عارف صاحب اس پر آپ کی بھی رہنمائی چاہیں گے اور یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا اتحاد کو چنوتی ملی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا یہ جو موضوع ہے یہ وقت کا اور اس دور کا بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے اور اس کی بہت ضرورت تھی. پلیٹ فارم کے ذریعے انشاءاللہ تعالی سمجھائے گا. اتحاد جو ہے وہ بہت ہی اہم شے ہے اور مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی وقت کی ضرورت بھی ہے اور شریعت کا تقاضا بھی. عالم اسلام اور مسلمانوں کا اہم ترین مسئلہ اتحاد ہے اور تمام یہ سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ تمام ضرورتوں اور ترجیحات پر برتری اور اہمیت کا اگر کوئی حامل ہے مسئلہ تو وہ مسئلہ اتحاد ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. دشمنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل عرب کا جو حال تھا، دنیا کا جو حال تھا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. تاریخ شاہد ہے کہ ایسی سخت دشمنیاں ہوتی تھیں، ایک دوسرے سے نفرتیں ہوتی تھیں کہ خون کے پیالے میں ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے تھے اور برسیں گزر جاتی تھیں، نسلیں گزر جاتی تھیں، صدیاں گزر جاتی تھیں، لیکن دشمنیاں ختم نہیں ہوتی تھیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دور جہالت کے باب کو ختم کیا اور محبت و اتحاد اور اجتماعیت کی فضا کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمایا. اور ایسا یہ عام ہوا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تو اللہ نے تمہارے دلوں میں تالیف کی، تمہارے دلوں کے درمیان جڑاؤ پیدا کیا اور اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. تو اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ تالیف قلب کی جو نسبت ہے رب نے خود اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے. یہ تالیف قلب یہ میری رحمت ہے. اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ نے آپسی اتحاد، آپسی محبت کو نعمت قرار دیا ہے اور نعمت کے بدلے میں شکر ہوتا ہے، اور اگر نعمت کے بدلے میں کفران نعمت ہو تو پھر رب کا عذاب ہی نازل ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں کئی طریقے سے اس اتحاد کے مسئلے کو سمجھنا ہوگا. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ہم اگر بحیثیت مسلمان اگر ہمارے اوپر جو فرائض اور واجبات ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ، اگر ان کی حکمتوں پر ہم توجہ کر لیں تو ایک بہت بڑی حکمت رب کی اتحاد اور اجتماعیت کی ہے. مثلا نماز تنہا انسان پڑھ سکتا ہے، اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے، چھپ کر پڑھ سکتا ہے اور وہ ریا اور نمود سے خالی ہوگا یہ اس کا عمل. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. اب اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے اندر برادرانہ مساوات کی تربیت دی جا سکے اور دلوں میں اتحاد و ہم آہنگی کے جذبے کو فروغ مل سکے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو نماز کے ذریعے جسمانی طور پر متحد ہونے کی طرف اشارہ فرمایا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے اللہ رب العزت نے مالی طور پر بھی متحد ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم کندھے سے کندھے ملا کر ایک ہو جاؤ. یہ جسمانی طور پر بنیان و مرصوص کی ایک مثال قائم ہو اور زکوٰۃ ادا کرو تاکہ پسماندہ اور جو طبقہ ہے وہ بھی جو ہے وہ تمہارے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے. اور اس زکوٰۃ میں اجتماعی جو نظام کو ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ضعیف اور بے سہارا طبقے کی پرورش و کفالت ہوتی رہے اور اس سے سماج اور معاشرے میں ایک جو ہے مساوات
की फिजा कायम हो और इत्तेहाद और इज्तिमाइयत की फिजा कायम हो। इसी तरीके से रोजे को अगर हम देख लें तो रोजा जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया में एक ही महीने में फर्ज फरमाया है। इज्तिमाई तौर पर माह रमजान में रोजा रखने का हुक्म दिया। हो सकता था कि हर मुल्क के मुसलमान आबो हवा और मौसम के लिहाज से अलग अलग महीनों में रोजा रख लेते, लेकिन तमाम मुसलमानों पर एक ही महीने में रोजा फर्ज किया गया ताकि इज्तिमाई शान बरकरार रहे। बिल्कुल यकीनी तौर पर यही खूबसूरती है इस्लाम की। वहीं आरिफ साहब आपसे चाहेंगे जो न्याज नजर को लेकर सवाल किया गया है उस पर आप रहनुमाई फरमा देंगे। आखिर क्योंकि ये बहुत बार सवाल उठा है, मकसूद साहब भी जानते हैं कि इस हवाले से बार बार सवाल किया जाता है कि कोई कहता है कोई नहीं कहता है, इसमें आप लोगों की भी क्या जिम्मेदारी है और कैसे इसको वाज़ेह किया जाए? आरिफ साहब। देखिए, जो नजरो न्याज का मसला है वो इसाले सवाब का है और ये ऐसे मसले नहीं है कि जिन पर जो है झगड़े किए जाए और बहुत ज्यादा इख्तलाफ ये खाई तैयार हो और फुरूई मसाइल है और ये सब कुरान और सुन्नत की रूह से जो है ना मुस्तंबत है। इसाले सवाब जी तो कुरान और सुन्नत से मुस्तंबत है, लिहाजा जो है इसाले सवाब की जहां तक बात है तो वो बिल्कुल दुरुस्त है और अहदीस से भी साबित है, कुरान से भी, कुरान की रूह से भी साबित है और जिंदों की तरफ से मुर्दों को जो है ना वो सवाब पहुंचता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के मरने के बाद जो है वो उसके तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं जो जिनका सवाब उसको मिलता रहता है। सदक़े जारिया को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि सदक़े जारिया है जिसका सवाब उसको मिलता रहता है। उसने कोई ऐसा अमल किया, ऐसा अमल किया जिसका असर जो है देर पा है। मसलन किसी ने दरख्त लगाया, जब तक वो दरख्त और उसका साया रहेगा उसका सवाब मिलता रहेगा। किसी ने नल लगवा दिया, किसी ने कुआं खुदवा दिया, किसी ने मस्जिद मदरसा बनवा दिया, सराय खाना बनवा दिया, यतीम खाना बनवा दिया, तो इसका सवाब उसको मिलता रहेगा जब तक वो चीज बरकरार रहेगी। ऐसे ही जो है अगर उसने अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तो उसके नेक औलाद का भी सवाब उसको मिलता रहेगा जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे। बहरहाल जो है इसाले सवाब का जो मसला है वो इसाले सवाब का मसला जो है ऐसा है कि इसाले सवाब सभी मानते हैं और तकरीबन लेकिन इख्तिलाफ खड़ा हो जाता है जो है वो नजरो न्याज का, यानी खाने पर फातिहा वगैरह का। तो ये ऐसा मसला नहीं है। आप अगर खाने पर फातिहा नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, आप यूं ही इसाले सवाब करिए। खाने का मतलब ये है कि खाने का भी सवाब जो है वो मरहूमीन को पहुंचता है। वो किसी को अगर उसमें कुरान पढ़कर कुरान की आयतों को अगर पढ़ दिया जाता है तो उससे जो मकसूद है वो है खैर व बरकत। और जब वो किसी गरीब को खिलाया जाता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की उम्दा और अच्छी खसलतों में से भी बयान फरमाया। जब सरकार से पूछा गया या रसूलुल्लाह इस्लाम की सबसे अच्छी खसलतों में से जो खसलतें उनकी तालीम फरमाई है, सरकार ने फरमाया सलाम करना, सलाम को आम करना और खाना खिलाना। लिहाजा वहां पर मरहूमीन के लिए जो है हम कुरान की आयत पढ़ते हैं और मरहूमीन के लिए खाने, गुरबा और मसाकीन के लिए जो मुस्तहिकीन है उनके लिए खाने का इंतजाम भी करते हैं। तो ये इसाले सवाब की इसमें नियत होती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कि ये कोई तशाबो हो या मुशाबियत हो किसी मुशरिकीन के अमल से या बुत परस्ती से। तो ये जो एक नजरिया आ जाता है यहाँ से इख्तिलाफ शुरू होता है। ये ताम से बस इसका जो है ताल्लुक है। और अवाम से मैं कहना चाहूंगा कि उलमा का जो इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ रहमत है। अगर उलमा किसी खास नजरिए पर कायम है तो उनके पास अपने दलाइल हैं और उन दलाइल की रोशनी में वो बात करते हैं। आपको जिन उलमा पर एतमाद और भरोसा हो आप उस पर अमल करें। उलमा
पर एतमाद करते हुए आप अमल करेंगे, आपको उसका सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, और हम कोशिश यही करेंगे कि इस मसलक में इतना ज्यादा ना पड़ा जाए, क्योंकि इख्तिलाफात तो लोगों की तरफ से उठते ही रहेंगे। आरिफ साहब, आपसे चाहेंगे इनकी रहनुमाई फरमा दें। जी, बहुत काबिल मुबारकबाद है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अस्माए हुस्ना की औराद की तौफीक अता फरमाई, और आप पढ़ते रहिए अल्लाह के अस्माए हुस्ना को, और इसका बहुत सवाब है। और अल्लाह का जिक्र फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो इससे बढ़कर और क्या फजीलत हमें चाहिए। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, जब वो मेरे बारे में पूछे तो बता दो कि मैं तुमसे बहुत ही करीब पर हूँ। तो इससे रब का कुर्ब हासिल होता है, और रब की जो सिफात है, उन सिफात के जो मज़ाहिर है वो आप पर जो है ना जाहिर होते हैं। और मसलन आप या करीमों का आप विर्द करते हैं तो अल्लाह के करम का फैजान जो है वो आप पर जारी होगा। गर्ज की बहुत ही जो है ये आपका अच्छा अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जहाँ तक इख्तिलाफ की बात है, आपने जिक्र किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का और हाबील और काबिल का, तो जहाँ पर जो है हम इब्ने आदम हैं और आदम की औलाद है, वहीं पर रोज़े अज़ल से ही जो है आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की पादाश में जो है इब्लीस वो उस वक्त जो है मुकाबले में दुश्मन की हैसियत से खड़ा हो गया था। उसने भी रब की बारगाह से जो है ना इजाजत मांगी थी और ये पावर मांगा था कि अल्लाह हमें ये इख्तियार दे कि हम भी अपना काम करते रहें। आदम की वजह से हमें जन्नत से निकलना पड़ा, आदम की वजह से हमें जो है वो तेरी बारगाह से दूर होना पड़ा है। लिहाजा हमें इब्ने आदम को वरगलाने और बहकाने और गुमराह करने की जो है पूरी छूट दी जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो ये एक जंग है नफ्सी जो है ना एक हम रहमानी है। हमें बस ख्याल रखना चाहिए कि हमारा कोई भी अमल जो हम करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने अजिन्ना और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इसमें एक बड़ा लतीफ इशारा है, वमा खलक़तु, इसका मतलब यह है कि मैंने पैदा नहीं किया, यानी इंसान और जिन्नात को मैंने पैदा नहीं किया। फिर आगे फरमाया इल्ला, मगर लियअबुदून, ताकि वो मेरी इबादत करे। अब लियअबुदून के लिए के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं लियअरिफून, ताकि वो मुझे पहचाने। अब इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम मेरे हो तो मेरे बनकर रहो, मेरी ही इबादत करो और मुझे पहचानो। लिहाजा हमें हर अमल में, हर मामले में जो है ना ये ख्याल रखना होगा कि हमारा खालिक कौन है। हमारा खालिक, हमारा रब है, वो जो समद है, लम यलिद है वलम यूलद है, या हम शैतानी रास्तों पर चल रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है फमन इत्तबा हुदाया फला यदुल्लु वला यशका, जो मेरे रास्तों पर चलता है वो ना गुमराह हो सकता है और ना बदबख्त हो सकता है। लिहाजा हमें अल्लाह के अहकाम को पर अमल करना चाहिए, अल्लाह के अहकाम को हमें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना चाहिए। और ये सब हिकमतें हैं रब की, जो भी मामलात हुए, हादसात हुए, उसमें रब की हिकमतें हैं। और हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे मामलात होते रहते हैं, उसमें भी रब की हिकमतें रहती हैं। अल्लाह फरमाता है वअसा अन तकरहु शैअन फहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बु शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, कि मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा समझो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो, और जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो उसमें तुम्हारे लिए शर हो। अल्लाह बेहतर जानता है, तुम नहीं जानते हो। लिहाजा हमें जो है ये अल-मुमिन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल-मुमिनु लिल-मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदन सुम्मा शब्बका असाबिहु, ये हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए
इमारत की तरह है, उस घर की तरह है कि जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। जब ईंट पर ईंट रखी जाती है तो एक ईंट से दूसरी ईंट मजबूत होती है। लेकिन यहाँ पर सितम ज़रीफी ये है कि जो मजहब आलमगीर था, जिसकी वहदत और अखुवत जो है वो आलमगीर थी, आज खुद उसके पैरोकार गिरोही व इलाकाई असबियत, खानदानी व नस्ली बरतरी, जबानो बयान और मसलकी इख्तिलाफ की बुनियाद पर इंतशार और इख्तिलाफ के शिकार हो चुके हैं। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे, वातस्मू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और रस्सी की तरफ इशारा यह है कि जब जिस तरीके से बटी हुई रस्सी एक दूसरे को कुव्वत पहुंचाती है, इसी तरीके से तुम भी इत्तेहाद और इज्तिमाइयत की जिंदगी गुजार कर बिल्कुल यकीनी तौर पर यही मकसद है कि इस पैगाम को आम किया जाए और लोगों को याद दिलाया जाए कि हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस हवाले से रहनुमाई फरमाने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हमारी खास पेशकश में इतना ही। आदाब।